as I have to attend a meeting. Okay, so it will begin at 10:50, right? So Gaurik, over to you. Join your hands and close your eyes. Let's start something. Sai Ram. Sai Ram. Okay, beta. So before I start teaching you, any questions so far about light? What is light? Right? How are we able to see the things? Right? Then we learned about three types of materials: transparent, translucent, and opaque. Then we also learned about luminous objects, non-luminous objects. Then we learned about shadow formation, right? So let us start with the shadow formation again. Okay, beta. Garik, see Okay, the sir. screen. See the screen. I'm going to share my screen. Let us see once again. How is Sir, your shadow screen is formation? visible. विजिबल ओके साउंड देखना कम होगा तो बताना मेरे बेटा है ना लेट अस Okay, सी sir. Sir, sound is clear. ओके गुड नोट डाउन एनी If you क्वेश्चन stand outside on a sunny day, you will see your shadow. When you get in the way of the light from the sun, you block the light and a shadow is formed. Have you ever noticed that your shadow changes? When the sun is high in the sky during midday, it is directly overhead and your shadow is short. Now look at this shadow. This person's shadow is much longer. Why is it so long? Well, your shadow is long when the sun is low in the sky. For example, in the early morning or in the early evening. As the sun appears to move across the sky, your shadow will change length throughout the day. When you move, so will your shadow. It will always be on the side that faces away from the sun. Look at these people. Their shadows are not in front of them when they walk, but they are to the side. Can you work out which direction the sunlight is coming from? This person's shadow is also to the side. Can you work out which direction the sunlight is coming from now? The person's shadow is also quite short in length. What time of the day do you think it is if the shadow is short? Watch these soldiers carefully as they march. Can you identify what changes about their shadows? Remember, our shadows always stay with us. Our shadows can change direction, they can be in front or behind us, or even to the side of us. Our shadows can change in length too. They are short during midday and long in the early morning or evening. So my dear, is there any question regarding shadow? We have seen this video in previous class also. Am I right, Gauric? Arus joined, Sairam, to Yes, all sir. those who joined late, right? And beta read the WhatsApp Yeah, group. yeah, sir. है ना बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा सा ओके गुड 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 सो एनी क्वेश्चन अबाउट शेडो लेट अस वंस अगेन रिवाइज है ना बेटा फॉर्मेशन ऑफ शेडो सी
How is shadow formed? When light falls on an opaque object, a dark patch is formed on the other side of the object, which is called shadow. And if I ask you define shadow, then you will write down this. Okay. As for example, you can see here. This is a shape object, opaque object. It is kept in front of light. Then you can see a dark patch has been formed behind the object. This is called shadow. है ना बेटा? For shadow formation, three things are essential. Remember बेटा, है ना? Number one, source of light. Number two, an opaque object. And number three, a screen. All these three things are essential. तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो शैडो नहीं बनेगा. ओके. अब देखो इस लड़के का शैडो बन रहा है. तो व्हाट इज द स्क्रीन? कौन बताएगा? इन दिस फिगर, एनीवन? आरुष, आर यू हियर? Yes, sir. हाँ बेटा. तो अभी देखो इस लड़के का शैडो बन रहा है. सो ओपेक ऑब्जेक्ट इज द बॉय हिमसेल्फ. एम आई राइट? Yes. Yes, sir. व्हाट इज द स्क्रीन? Sir, road. हाँ, ground is the screen. Very good, very good. Road or ground is the screen. And there must be some source of light which is not seen here. In which direction is that? At the back of the boy. Right? Yes, sir. है ना बेटा? Good, very good. So ऐसे आपने देखा होगा कोई बर्ड को उड़ते हुए. तो कई बार बर्ड की शैडो जमीन पे आपको दिखाई देती है. लेकिन बर्ड जब बहुत हाइट पे उड़ता है तो उसकी शैडो जमीन पर नहीं बनती. वाई? जल्दी बोलो. सर क्या? आपने किसी बर्ड को उड़ते देखा है? कोई चिड़िया को उड़ते देखो, कौवा वगैरह को. तो कई बार उसकी शैडो आपको दिखाई देगी, जमीन पे दिखाई देगी शैडो. लेकिन जब ये कौवा बहुत ऊपर उड़ता है तो शैडो दिखाई नहीं देता. वाई? सर क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ रहा है और उसकी शैडो यहाँ पे आते आते शायद खत्म हो जाए और छोटी हो जाए बहुत. Sir, due to penumbra. देखो नहीं, स्क्रीन जो है ना, वो जब ग्राउंड स्क्रीन की तरह काम करती है तो शैडो ग्राउंड पर दिखाई देती है. जब ये बहुत हाइट पे उड़ता है तो शैडो तो बनती है लेकिन एयर में बनती है. एंड एयर कैन नॉट एक्ट एज एन स्क्रीन बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. राइट? स्क्रीन कैसी होनी चाहिए? ओपेक होनी चाहिए ना, है ना? तो एयर में बनता है शैडो उस समय बेटा. तो उस समय हमको दिखाई नहीं देता. लेकिन जब वो बर्ड काफी नीचे आता है तो उस समय ग्राउंड एज ए स्क्रीन काम करती है और ग्राउंड पे शैडो बनती है और हमें दिखाई देता है. ठीक है? ओके. So size of shadow depends on the distance of source of light and on the angle at which the light is falling on the object. Okay. Now let us see. You can see here also shadow is formed. है ना? Light, opaque object and screen. Screen is here. Table. Table is acting as a screen here. If an object is moved closer to the light source के बहुत पास जाए हम, ऐसा आप करना. एक टॉर्च जला लेना बेटा इस घर में. टॉर्च जला लेना और एक कोई बॉल ले लेना, टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल जो भी तुम्हारे पास है, या फुटबॉल, और उसकी शैडो अपने वॉल पे, अगर वॉल वाइट हो तो और अच्छा, उस पर देखना. तो कभी सोर्स ऑफ लाइट के पास में लाना बॉल को, फिर देखो कैसा शैडो बन रहा है. दूर ले जाना कैसा बनता है. करोगे बेटा? Okay, sir. Good. If an object is moved further away from the light source, जब लाइट सोर्स से दूर ले जाओगे, the shadow gets smaller. Early morning and evening, the sun is low in the sky and casts a long shadow. Shadow is longer at which time of the day? Sir, at the sunset and the sunrise. Sunrise. Very good. Evening. In the morning and in the evening. And in the midday, since the sun is overhead above the sky, so at that time short shadow is formed. आज आप लोग अभी अपने घर से बाहर निकलना और थोड़ी धूप में जाना, और अपनी धूप नीचे है नहीं तो खैर दूसरे दिन करना, और आप ऑब्जर्व करना बेटा. छुट्टी के दिन मॉर्निंग में
दोपहर को। और आप ऐसा भी कर सकते हो, एक स्टिक लगा सकते हो अपने आंगन में जहाँ लाइट आती है, सनलाइट आता हो, और उसकी शैडो का डायरेक्शन और साइज एक पेपर पे ड्रॉ करके देखो एट डिफरेंट टाइम से। स्टार्ट फ्रॉम, सनलाइट आई जाती होगी मान लो 8 बजे के आसपास इन द मॉर्निंग, और उसका शैडो कैसे कैसे बन रहा है, और उसको आप कागज पे स्केचेस करते जाओ आफ्टर एवरी 1 आवर से। 8 बजे फिर लो, 9 बजे फिर लो, 10 बजे फिर लो, 11 बजे लो, 12 बजे लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक ऑब्जर्व करो इसको। आजकल 6 बजे तक नहीं कर सकते, 5 बजे तक करो आजकल, है ना। तो भी आपको एक एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा। अब आइए देखें, शेडो हैज 2 पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ शेडो। नोट डाउन, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, है ना। गौरी, आरुष, कैन यू हियर मी? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अम्ब्रा, है ना। आप भी देखना, आज क्या करना, एक Yes, फुटबॉल sir. या बड़ा सा बॉल रख देना जमीन पे, ऊपर से टॉर्च जलाना और शेडो को ऑब्जर्व करना। बीच का शेडो टोटल डार्क होगा, दिस इज कॉल्ड अम्ब्रा। अम्ब्रा इज द टोटल डार्क पार्ट ऑफ द शेडो। और अम्ब्रा के चारों तरफ भी शेडो बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट आता रहता है, इस वजह से यहाँ पर पार्शली डार्क पैच बनेगा, दिस इज कॉल्ड पिनम्ब्रा। Umbra and penumbra, there are 2 parts of a shadow, umbra and penumbra। और एक और पार्ट होता है एंटम्ब्रा, वो मैं होमवर्क देता हूँ आपको, खोज के रखना। एंटम्ब्रा, ANTUMBRA, ठीक है आरुष, होमवर्क फॉर यू। एंटम्ब्रा, Okay, sir. ठीक है। अब अम्ब्रा इसको बोलेंगे, इट इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ शेडो। डिफरेंस डिफरेंस आ सकता है, पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो, पेनम्ब्रा इज द लेस डार्क पार्ट ऑफ द शेडो और पार्शियली डार्क पार्ट ऑफ द शेडो। नो लाइट रीचेज टू दिस रीजन। अम्ब्रा में लाइट जरा भी नहीं पहुंचता बेटा, इसलिए डार्क पटल होता है। लाइट फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ सोर्स रीचिंग, थोड़ा थोड़ा लाइट पहुंचता है यहाँ पर है। और पिनम्ब्रा तभी बनेगा जब सोर्स ऑफ लाइट इज एक्सटेंडेड, सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा बड़ा हो तभी बन पाएगा, है ना। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से पिनम्ब्रा नहीं बनता, ठीक है। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ शेडो, शेडो का बीच का पार्ट होता है, एंड इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द शेडो। सो एनी क्वेश्चन so far about shadow, umbra, penumbra? Tell me. No, I think. Let us now go about pinhole camera. Okay, beta. Pinhole camera. Before that, we have learnt about how does light travel. Sir, rectilinear propagation. In Very good. rectilinear It means distance. straight line path. Rectilinear. Light travels in a straight line path, which is called rectilinear propagation of light. And pinhole camera also works on the principle of rectilinear propagation of light. Means light travels in a straight line. A pinhole camera is a simple device to get an inverted and real image of the object. Okay, it works on the principle that light travels in a straight line, or you can say rectilinear propagation of light। ब्रैकेट में लिख लो, rectilinear propagation of light। तो आप देखिए, ये पिन होल कैमरा है, यहाँ पर एक होल है छोटा सा, और इस तरफ एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है बेटा इधर। तो जब ये ट्री को देखा जा रहा है, तो ट्री से आने लाइट, यहाँ की लाइट होल से होकर सीधी यहाँ पहुंच जाती है, और यहाँ की लाइट सीधी यहाँ पहुंच जाती है, और इस तरह से एक इन्वर्टेड रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, ठीक है, जो छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, है ना। आप भी एक पिनहोल कैमरा बनाएंगे सभी लोग, मैं बनाने के लिए बताता हूँ कैसे आप बनाएंगे, है ना बेटा। सभी लोगों को बनाना है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये चैप्टर, इसका अगला चैप्टर, एक और मैग्नेट चैप्टर, ये तीनों चैप्टर जो होगा प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। इसमें आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं और एक्सप्लेन करना है, उसका छोटा सा वीडियो बना करके आपको उसकी लिंक को अपलोड करना है, मतलब मुझे भेजना है पर्सनल व्हाट्सएप पे,
ठीक है, तो पहला काम क्या दे रहा हूं मैं आप करने के लिए, पिन होल कैमरा बनाना है, सभी को बनाना है अपना अपना पिन होल कैमरा। ठीक है, बनाने के बाद उसकी स्मॉल वीडियो बनाएंगे, आपने कैसे बनाया और कैसे काम करता बताता हुआ। ठीक है, अब आइए समझते हैं हाउ डज अ पिन होल सर वो कैमरा, कैसे बनाते हैं? कैसे बनाएंगे पिन होल कैमरा। ये देखो, हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। आपको दो शू बॉक्स लेना है बेटा, ऐसे जूते के दो बॉक्स लेने हैं। बस ये ध्यान देना कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स अंदर जाए और बाहर आ जाए, इट कैन गो एंड कम, स्लिट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है बेटा, आपको शू बॉक्स नहीं मिले तो खुद के आप हार्ड पेपर से, चार्ट पेपर से बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक बॉक्स है इसका ये वाला पार्ट खोल कर बाहर निकाल दो, और दूसरे वाला बॉक्स जो है इसके आगे वाले पार्ट पे थोड़ा सा स्क्वायर शेप में काट के एक ट्रांसलूसेंट पेपर, इसको आप बोलते हो थिन पेपर और ऑयल पेपर और बटर पेपर बोलते हो, ये दुकान में मिल जाएगा अभी आपको, उसको लगा दीजिए काट के। और अब आप इसको इसके अंदर डालेंगे, ये पार्ट खोला, ये पार्ट खोल दोगे, बाहर खोल दोगे इसको, अब इसके अंदर डाल दोगे इस पार्ट को और इसको आगे पीछे करोगे। अब ये वाला जो बॉक्स है इसमें पीछे एक छोटा सा बिल्कुल पिन होल कर देना इसमें, योर पिन होल कैमरा इज रेडी। इस तरह से दिखेगी पिन होल कैमरा। ये पिन होल है पहले वाले बॉक्स के अंदर, दूसरे वाले बॉक्स के उसके अंदर एक छोटा बॉक्स जा रहा है, ये पार्ट खुला हुआ है, ये तुम्हारा स्क्रीन है। अब आप किसी भी ट्री को देखोगे ना, बस लाइट होना चाहिए प्रॉपर, तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर ट्री का उल्टा इमेज छोटा दिखाई देगा। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ देखो बेटा, इसमें ये आप जो देख रहे हैं तो छोटा सा इमेज यहाँ दिखाई देता है। ठीक है बेटा, अगर पूछा जाए, सर हाँ, सर ऑयल पेपर कहाँ लगाना है? ये दूसरा जो बॉक्स है ना बेटा, ये वाला बॉक्स, इसके एक साइड पे छोटा सा खिड़की ऐसा काट देना और वहां पे लगा देना ऑयल पेपर, इसको बोलते हैं बटर पेपर भी बोलते हैं, है ना, यहाँ लगा देना। ठीक, और इसके उसके अपोजिट वाला साइड को खोल देना, मतलब वहां से देखने के लिए होगा हमारा, और ये पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। तो होल होल के पास कौन सा पार्ट रहेगा, जिस पार्ट में आपका ये बटर पेपर लगा हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो ये दिख रहा है, इस फिगर को देखो ध्यान से, देखो बेटा, इस वाले बॉक्स में होल है, दूसरे वाला जो बॉक्स है उसके साइड पे लगा हुआ है बटर पेपर, और यहाँ से देखेंगे इसके अंदर डाल के। ठीक है, a pinhole camera is composed of two boxes. One of the boxes fits inside another box and can be slid to and fro. There is a pin-sized hole at the front of the camera and a translucent screen at the back of the camera. The distance between the pinhole and screen can be adjusted to obtain a clear image of an object. इसको आगे पीछे कर देखोगे ना तो इस पर स्क्रीन पे तुम्हारे बहुत ही अच्छी पिक्चर आएगी, रियल इमेज बनेगा। याद रखो, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा होता है ना, एज यू कैन सी हियर, ये। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको हम बेटा क्लासेस 7 में क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ हाँ, यहाँ भी देखते हैं हम। सर यस बेटा बोलो। सर वो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है? पिन होल कैमरा आपको बनाना है, दो सर बॉक्स बहुत सर क्लियर नहीं है आवाज। हैं, पिन होल कैमरा ये तो मैं, सर बहुत अब आइए, क्लियर नहीं है क्या क्लियर नहीं है, वॉइस। वॉइस, अच्छा गौरी, क्या नहीं है बेटा, Your voice is clear. Your voice is very clear. आप बेटा रिज्वाइन कर लो। अब देखो बेटा, पिन होल कैमरा ध्यान से देखना, इसमें भी पिन होल कैमरा के बारे में बता रहा है। ये देखिए ध्यान से, पिन होल कैमरा अबाउट Pinhole camera. A pinhole camera is a simple camera without a lens. Instead of the lens, it has a small opening. A सर ये pinhole कैमरा to हमें allow बनाना है? हाँ जी the बनाना है। pinhole camera is very simple. Light passes in a straight line through the pinhole and creates an inverted image on the screen.
To understand how a pinhole camera works, we will build one. We ध्यान से will देखो। need a deep cardboard box, a sharp pin, duct tape, and a sheet of tracing or waxed paper. ट्रेसिंग पेपर और wax Begin paper। by checking the sides and bottom of the cardboard box. Ensure that there are no holes or gaps through which light could enter. Using a thick, sharp pin, pierce the center of the box bottom. Next, use the duct tape to tightly secure the waxed paper or sheet of tracing paper completely across the open end. This will act as a screen. Hold the pinhole camera so that the pinhole is pointed away from you and the paper is facing you. Point the camera outside the window at a bright object such as a tree. You should be able to see an upside-down image of the scenery projected onto the paper screen. Let's see how the image was formed. The light rays reflected off the distant object travel in a straight line, converging at the pinhole. Through the hole, the lines will continue to travel in a straight line path and strike the screen. As a result of the intersection of straight lines, the image on the screen will appear inverted. This is referred to as real image because it can be captured on the screen. यस बेटा बोलो। Summary. सर इसको कहाँ से देखते हैं हमें? या इट हैज नो लेंस सर हम इट इज विदाउट सर इमेज या बोलो। सर आप सर इमेज को हम कैसे देख सकते हैं पिनहोल कैमरा में? पिनहोल कैमरा में इमेज दिख पाते हैं क्योंकि ये इमेज रियल इमेज है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इमेज दो तरह का होता है बेटा, एक को बोलते हैं रियल इमेज, एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। An image which can be obtained on a screen is called real image. तो स्क्रीन पे इमेज आ रही है इसको बोलेंगे हम रियल इमेज। ठीक है, तो आप दो बॉक्स वाला बनाना। एक सिंगल बॉक्स वाला इसने बताया, टाटा क्लासेस में सिंगल बॉक्स का बताया, मैंने आपको दो बॉक्स का बताया। समझ आया? ये जो पहला बॉक्स सर हम कहाँ से देखते हैं? हाँ जी सर हम जो रियल इमेज होती है उसे हम कहाँ से देखते हैं? स्क्रीन पे। सिनेमा देखे हो कभी? सिनेमा हॉल में जाकर पार्चमेंट पेपर की स्क्रीन। ये बेटा जिसको बोलते हैं थिन पेपर है ना, तो ट्रांसलूसेंट पेपर होता है ना, उसको बोलते हैं। कई बार बिस्किट के डिब्बे में मिलता है ऐसा पेपर। उस पेपर को कागज पर रख के पढ़ोगे ना तो हल्का हल्का लेटर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं बटर पेपर। ठीक है, वो पेपर एज एन स्क्रीन काम करेगा आपका। यस सर। ओके ओके सर। shall we go ahead? Anybody having any doubt? Tell me beta right now about pinhole camera. सर उसको पिन होल कैमरा क्यों कहते हैं? Because that hole is pin size. ओके सर। That hole is pin size, that's why. तो सर उसमें पिन से छेद करना पड़ेगा क्या होल? हाँ बेटा, पिन से कर देना, थोड़ा बड़ा भी होगा पिन से चलेगा, बहुत बड़ा मत करना। आप देख लेना, अगर इमेज नहीं आ रहा है थोड़ा होल को सॉरी थोड़ा होल को बड़ा करना। ओके सर। कोशिश करो बनाने का, नहीं बनेगा ना तो मुझे ऐसे आधी मीटिंग है ना, मीटिंग में दिखाना ला सकते है ना, तो काम करने लगेगा हमारे सामने वो। ठीक है, अभी स्कूल में होता है ना बेटा, तो मैं आपको लैब में दिखाकर दिखाता, हमारे पास जो लैब में बने हुए हैं, तो जल्दी समझ में आया था आपको। अगले पीरियड में कोशिश करेंगे दिखाने के लिए भी, अगर आप दिखा पाओ यहाँ पर तो। ठीक है, so now let us go to the next part which is called reflection of light. ठीक है, let me present again my screen. Can you see the screen beta? Yes sir, your screen is visible. पिन होल कैमरा, ये ध्यान देना है बेटा, है ना। दो बॉक्स लेने हैं पिन होल कैमरा के लिए, समझ बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये दो बॉक्स में से एक बॉक्स जो होगा उसका एक साइड ओपन कर देना
और उसके पीछे वाले साइड पे पिन होल कर देना। बात समझ में आई ये वाली? यस सर। है ना? अब दूसरा दूसरा डब्बा लेना या आप खुद के बनाना, है ना बेटा, मोड़ के बना सकते हो। उसमें एक साइड ओपन कर दोगे और पीछे वाले साइड पे छोटे से खिड़की से काट के वहां पर चिपका दोगे बटर पेपर। और ये वाला पार्ट जिसपे बटर पेपर लगा हुआ है ये इस डिब्बे के अंदर डाल दोगे। बस योर पिन और कैमरा इज रेडी। इस तरह से हो जाएगा, ये इसके अंदर ही चला जाएगा। तो इधर से देखना आपको है, ये आगे पीछे करना है। अगर अंदर वाले बॉक्स को आगे पीछे करोगे ना तो देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज आपको दिखाई देगा इसके ऊपर। ठीक है, बस धूप में जाके देखना, लाइट अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, है ना? कई बार आपने देखा होगा कि घर में मिरर के ऊपर अगर टॉर्च लाइट डालते हो तो लाइट दूसरे डायरेक्शन से वहीं से बाउंस बैक होकर के आती है। देखा होगा आपने। आपने कई बार अपने दोस्तों को चिढ़ाया भी होगा, अपनी घड़ी को ऐसे करके उसके चेहरे पे लाइट डालते हो, है ना? इस तरह से किया भी होगा आपने, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light falls on a shiny surface the light rays bounce back. This phenomenon is called reflection of light. Note down. The phenomenon of bouncing back of a ray of light after striking a smooth shiny surface is called, है ना, reflection of light. टेलीस्कोप बनाया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट जस्ट मिनट। सही रहा, है ना? वो मीटिंग के बारे में बात हो रही थी बेटा। हाँ बेटा, और माइक हाँ म्यूटेड अभी भी। अच्छा, लेट मी सी। नहीं, नाउ अनम्यूटेड बेटा। नाउ सी द सही और स्क्रीन देखो बेटा। ठीक है, मिरर इज ए सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। अब देखो फिगर में यहाँ पर ये मिरर है, इस पे टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हमारा है? ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट। इधर से लाइट आ रही है और टकराने के बाद इस तरफ लौट रही है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट पड़ती है मिरर पे दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट। इंसिडेंट हाँ, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हाँ क्लास है भाई। हाँ ओके बेटा, नाउ सी इमेज। हाँ ना, हाँ 11:30 में ओवर कर दूंगा, मैं क्लास छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, तो अरेंजमेंट लगवा लीजिए ना, करना जरूरी है। हाँ सर योर माइक इज म्यूट। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर कभी कुछ बोल ही नहीं। हाँ, सर का माइक ही म्यूट है। सर अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे। अनाउंसमेंट नहीं, शायद कोई मैम आई है। अरे सर की 11:30 पे मीटिंग है, हाँ, इसलिए अपनी 11:20 इसलिए क्लास पर भी जल्दी रखी। जाएगी।
इसलिए अपने हाँ, यस बेटा। 11:25 तक चुके हैं। हाँ बेटा, I have to attend a meeting at 11:30, right? So I was talking to ma'am, right? That's right. Yes beta. Now image formation. Let us see. Screen दिख रही है बेटा? Yes, sir. Okay बेटा. आउट हो गया था, एक मिनट. Yes. So learned about reflection. Reflection of light we have seen. Pinhole camera we have seen. Pinhole camera says that light travels in a straight line. Also, see, formation of shadow. This also explains that light travels in a straight line. ठीक है बेटा? अब now reflection and images. Right? Reflection and images. Due to reflection of light, image is formed. कितने लोगों ने देखा है ऐसा? मिरर के सामने खड़े हुए होगे तो आपने अपना इमेज देखा है मिरर में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो दिस या फिर आपके घर में कोई चमकती हुई थाली होगी या स्पून में देखो तो भी आपको अपना इमेज दिखाई देता है ना? यस तो सर, इमेज दिखता इज है। फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप क्लियर पूल, बहुत पानी, ठहरा हुआ पानी हो, साफ पानी हो, वहां भी जाके देखो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है. ठीक है, तो शेडो मत बोल देना. शेडो कब बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करती है तब बनती है शेडो. और इमेज बनती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है, सो इमेज डिफाइन करते हैं द पॉइंट सर मैंने मिरर वेयर. का यूज करके प्रेमिस्कोप बनाया है. हाँ बेटा, हाँ हाँ, गुड. वेयर टू और मोर लाइट रेज मीट और appear to meet after reflection or refraction is called image. So let us see this video. Devansh and Vihan went to storeroom to take their old books. Since there was no electricity, they carried a torch with them. As soon as they switched on the torch, they saw a round patch of light on the wall. They thought the light was coming from the mirror fixed on the wall. But do you know from where did the round patch of light hit the wall? The round patch or beam of light comes from the torch. Switch off the torch. Can you see the patch now? No. आप भी आज घर में करके देखना बेटा. रूम में जहाँ पर मिरर हो, लाइट बंद करके टॉर्च लेकर एक्सपेरिमेंट करके देखना ये वाला. और भी अच्छा कर सकते हो कि टॉर्च के ऊपर एक काला पेपर, सर मैंने किया है. ब्लैक पेपर बांध दो और ब्लैक पेपर में छोटा सा होल कर दो, है ना? और फिर देख करके देखो एक्सपेरिमेंट ये वाला इसमें. Switch on the light again. The light from the torch falls on the mirror and gets reflected on the wall. The mirror changed the direction of light beam once the light beam falls on it. So, the light appears to be coming from the mirror. This change in the direction of light by a mirror is called the reflection of light. Have you seen your own images in the mirror? It is due to the phenomenon of reflection of light. याद रहेगा? When you look in front of a mirror, you can see your image in the mirror. This is because of the which property of light? Reflection of light. Okay beta? Note,
that the images formed after reflection of light are very different from the shadows. ध्यान देना बेटा, शेडो और इमेज में डिफरेंस होता है, देख रहे हो? इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। और इमेज में देखो, शर्ट वाइट थी तो वाइट दिख रहा है, बटन ब्लैक था तो ब्लैक दिख रहा है, यानी जैसा कलर ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही कलर इमेज में होगा। लेकिन शेडो में देखो तो, अगर लड़का रेड शर्ट पहने हो तो क्या शेडो में भी रेड शर्ट दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा? बोलो बेटा आरुष। सर हमें तो ब्लैक ही दिख रहा है। शेडो ऑलवेज ब्लैक होगा। Black अब दिखेगा कोई भी सर। कलर की ऑब्जेक्ट ले जाओ। अब किसी ने पूछा था कि राम ने रेड शर्ट धूप में सूखने के लिए दिया, तो उसके शर्ट की शेडो जो धूप में बनेगी जमीन पे, वो किस कलर की होगी? सर ब्लैक। ब्लैक ही होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है हमारा, इमेज हैज द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? ध्यान से देखो। नोट डाउन। Can you think of some differences between the images and shadows? Shadows are always black, whereas images are colorful. Note down. This is the difference. Shadows are always black. Images are colorful. And बेटा, we'll continue this in the next period also. याद कराना मुझे कि सर हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज एंड शेडो के बारे में, ठीक है बेटा? Since I have to attend the meeting बेटा, so I am let me discontinue here. Okay, right? So chant Shanti Path. We will begin. Sir, from what is refraction? है ना? Refraction is the bending of light when light moves from one medium to another. जैसे एयर से वाटर में जाएगी, जैसे गिलास में पानी भर लेना, उसमें अपनी पेन डाल के देखना, तो दोनों मीडियम जहाँ पर पानी और एयर मिल रही है वहाँ देखोगे, वहाँ पेंसिल तुम्हारी टूटी नजर आएगी। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन ऑल दी इन द नेक्स्ट पीरियड बेटा। ओके? Yes, sir. शांति शांति शांति। Yes, बेटा। साई राम, now you can. Thank you, sir. Leave the class. Saram sir, thank you sir. Bye sir. Okay बेटा, bye. Bye, sir. Bye बेटा।